Welcome friends to Akar Communicative English School. Well, today in this session, I'm going to tell you exactly what to learn, why to learn and how to learn. मैं आज आपको इस पहली कक्षा में ये बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है और सबसे पहले तो क्यों सीखना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, what to speak, how to speak and why to speak, what to say, how to say and why to say. I'll give you a small example. When a child grows to the age of 1 or 2 or 3, पहली चीज वो क्या करता है? सबसे पहले वो सुनता है, 1 साल तक सुनता रहता है, मुंह के मूवमेंट को, लिप्स के मूवमेंट को देखते रहता है. He keeps looking at you. He keeps listening to the sound that come from you. So the initial thing is listening. After listening, he starts making attempt to speak. And so the second thing that he does is to articulate his feelings, to speak out what he wishes to in random way, in whatever way, in right or wrong, irrespective of its consequences, but he speaks. And then when he grows to the age of 4 or 5, he starts going to school and then starts reading. फिर पढ़ाई शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है और लिखना अंत में आता है. So dear friends, it means in order to understand, in order to learn English, you need to have few steps. उससे पहले मैं एक बात जानना चाहूँगा कि आखिर आपने मेरी साइट क्यों खोली है. मेरी साइट से मेरा मतलब है कम्युनिकेटिव इंग्लिश की, स्पोकन इंग्लिश की साइट क्यों खोली है. Is it just because you were surfing and you happened to perchance land upon this? Maybe something appealed to you? Or is it because you really wanted to understand कि अंग्रेजी कैसे सीखें, अंग्रेजी सीखना है मुझे, क्यों सीखना है. ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी नहीं बोलने वालों की दुनिया निराशा से भरी है. ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी ना बोलने पर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते. ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो बिना अंग्रेजी के they have done well, exceedingly well as probably the ones who speak English, who communicate in English. लेकिन ये ख्याल रखना होगा कि यदि अंग्रेजी आपको आती है और उसमें से बोलना आता है तो आपका जो ऊपर जाने का ग्राफ है वो अच्छा रहता है, वो स्मूथ रहता है. You have a relatively very smooth sailing in going up the ladder in your career graph, in your social circle and so on and so forth. तो अंग्रेजी सीखना इसलिए जरूरी नहीं है कि उसके बिना हम ऊपर नहीं जा सकते, बल्कि इसलिए जरूरी है कि उससे जाने से, उसके जानने से हमारा जो वार्धक्य है वो सरल हो जाता है. We need not learn English just because probably we think that the only way to go up. No, we need to learn to communicate in English because it definitely facilitates our growth. It helps us in smoother growth. It makes our struggle much less to that extent. Am I clear? Have you understood कि अंग्रेजी हम क्यों सीखें या अंग्रेजी सीखने की हमको जरूरत क्यों है. Second, the next point, the next thing that you need to know is, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे. 90 दिन में अंग्रेजी सीखें, 30 दिन में अंग्रेजी सीखें, 12 मिनट में 10 सीखें, 6 माह का ये कोर्स, 8 माह का ये पैकेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. All said and done, one thing is common, ये अंग्रेजी बोलना है. अंग्रेजी इंग्लिश सेंटेंसेस हमको बोलना है, क्योंकि हमारे पास वो माहौल नहीं है अंग्रेजी बोलने का, इसलिए हमारा स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा होता है.
If I'm born in Hindi family, Hindi speaking family, as a child of class age 3 or 4, I pick up pretty good in Hindi. I don't make mistakes in my grammar without learning grammar. Do I? Did you? No. You apply proper tense, you apply proper gender. आप जेंडर और टेंस दोनों सही तरीके से लगाते हैं. आपका बच्चा सही तरीके से बोलता है कि उसको बाजार जाना है, तो बोलेगा मुझे बाजार जाना है. वो ये नहीं बोलेगा मैं बाजार गया था. किसने सिखाया उसको? माहौल ने. So coming back to the point, important thing is we must learn to speak. First is we must learn to listen. Then we must learn to speak. The third is, of course, as I said, to read. That part I'll take up later. So, but the fact remains that to listen, number 2, to speak, and maybe before we go on for reading, to practice. What? Practice the art of listening, practice the art of speaking. Let us see what he needs to listen. आपको क्या सुनना है? Sorry, मैं आपको BBC, डिस्कवरी चैनल, हॉलीवुड फिल्म या बड़े बड़े विद्वानों के भाषणों को सुनने के लिए नहीं बोलूँगा. मैं आपको अच्छे न्यूज़पेपर्स, ई-पेपर्स या इवन ऑडियो पेपर्स उसके लिए नहीं बोलूँगा. आई एम हियर नॉट टू टीच यू लिटरेरी इंग्लिश. नो, मैं आपको साहित्यिक अंग्रेजी से आपका परिचय नहीं कराऊंगा. मेरा जो दायरा है, मैंने जो अपना दायरा रखा है, वो ऐसा कि आप दैनंदिनी में, डे टू डे लाइफ में अपनी बात अंग्रेजी में सामने रख पाएं. सुबह से उठकर रात के सोते तक आपको अपनी दिनचर्या में जो जो बातें बोलनी पड़ती हैं, जो जो वाक्य बोलने पड़ते हैं, जो बातें रखनी पड़ती हैं, जो कम्युनिकेट करना पड़ता है, वो आपको बोलना आना चाहिए. आई थिंक दैट्स इनफ, एंड दैट्स इनफ फॉर एन इंटरव्यू ऑल्सो. That's enough for successful job also. That's enough for being a successful candidate for different careers also. So, I'm going to make you listen to small tidbits audios. उदाहरण के लिए आप BBC न्यूज़ ना सुने, आप दूरदर्शन में अंग्रेजी के जो एंकर हैं उनको सुने, जिनकी अंग्रेजी हमारे भारतीयता के बहुत निकट है. प्रोनाउंसिएशन और उस पर हम बाद में जाएंगे, पर सबसे पहले हम सुने, और वो चीज़ सुने जो हम समझने की क्षमता रखते हैं. इंग्लिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है, और ऐसे एक्सेंट की जरूरत भी नहीं है. यदि मुझे एक दुकानदार से बात करनी है, यदि मुझे एक मेडिकल शॉप में बात करनी है, यदि मुझे एक बैंक में बात करनी है, यदि मुझे अपने बॉस से बात करनी है, तो मुझे अमेरिकन एक्सेंट और इंग्लिश एक्सेंट की कतई जरूरत नहीं है. What I need to understand is that I can understand the other person and that I can communicate to him what I wish to. Am I clear? तो आपको क्या सुनना है? सर्वप्रथम आपको ऐसे लोकल चैनल्स जो अंग्रेजी में हैं उनके एंकर्स को सुनिए, उनकी बातें सुनिए. आपको कुछ रेडियो में, हिंदी में, अंग्रेजी में ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जो बड़ी सरल अंग्रेजी में हैं, आप उनको सुनिए. So number one is listening is very important. And listen, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे सीरीज जो निकलेंगे वीडियोस के, उसको सुनिए, उसमें क्या बोला जा रहा है सुनने की कोशिश करिए. Having made you understand the importance of listening, the next thing comes is to speak. And it is here that you find a big stumbling block. Listening is no difficult. Probably even writing is no difficult. Probably even reading is no difficult. The difficulty comes in speaking. This is the most important part
wherein I'm going to concentrate in my Aakaar communicative English class, communicative class, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बात करें, how to communicate, how to transfer your ideas to other person, how to convey your ideas to other person, your feelings to other person. When it comes to speak, what to speak, how to speak, एक बात ख्याल रखिए, अधिकतर लोग हम लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि बोलना नहीं आता, बल्कि इसलिए नहीं बोलते क्योंकि बोलने से डर लगता है। डर किस बात का? असफल होने का। डर किस बात का? गलत अंग्रेजी बोलने का। डर इस बात का कि कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है अपने पर। डर इस बात का कि सामने वाले हंसेंगे। डर इस बात का कि लोग मुझे चढ़ाएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हेरोडोटस, who is considered the father of modern oratory, आधुनिक वक्तृत्व कला का पितामह कहते हैं उसको। हेरोडोटस, ग्रीको रोमन कैरेक्टर, वो 17-18 साल की उम्र तक बहुत स्टैमर करता था। स्टैमर मीन्स STAMMER। स्टैमर मीन्स हकलाना, तुतलाना। बहुत स्टैमर करता था और इसलिए थोड़ा कटा रहता था, लोगों से थोड़ा दूर रहता था। लोग चढ़ाते थे तो थोड़ा हिचकता था, परेशान रहता था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया था। सो ही डेवलप्ड ए काइंड ऑफ नेगेटिव अप्रोच। Fortunately, one day he happened to go to the seaside, समुद्र के किनारे खड़ा था और वहां ऐसे बैठा हुआ पत्थरों के साथ, कंकड़ के साथ खेल रहा था। तब उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं समुद्र से बात करूं। Why I should not talk to the ocean? अर्थात क्यों ना मैं रोज जोर जोर से समुद्र से बातें करूं। और उसको लगा कि यदि मैं जोर जोर से बोलता हूं तो शायद मेरी जो हकलाहट है, तुतलाहट है, वो ठीक हो जाएगी। एंड लो, he started off that, and within a short period of 4-5 months he was where he should have been, a normal orator, a normal speaker. And then, as I said right at the beginning, the same guy who suffered stammering till about 17-18 years of age, the same guy who was suffering from complex for not being able to communicate properly, he became the father of modern oratory. So dear friends, the message is loud and clear. बोले, चिंता न करें कि दूसरा क्या सोच रहा है, किसी को सोचने का समय नहीं है। बोले, इस बात पे हिचक ना करें कि मैं गलत बोल दूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट बोले, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। इनफैक्ट लेट मी से, यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक रॉन्ग। गलत बोलने का विश्वास पहले आना चाहिए। यदि आपको मालूम है कि मैं गलत बोलूंगा और उसको विश्वास है तो बोलिए। कॉन्फिडेंस टू स्पीक, confidence to speak wrong English, to speak incorrect English, is the beginning of your growth in being a better communicator. So remember, गलत बोलने से हिचके ना। जब तक आप गिरेंगे नहीं, उठेंगे कैसे? एक पतंग भी जो है, वो उसको ऊपर यदि जाना है तो सीधा वो ऊपर नहीं जाती, वो बार बार उसको नोज डाइव करना होता है, बार बार उल्टा होती है, फिर हम उसको ऊपर उठाते हैं, बार बार वो गिरने की कोशिश करती है, फिर हम उठाते हैं। आपने उड़ाई है पतंग, you must have flown the kite and you must have noticed that these kites keep going down before ascending, before going up, and for every upward movement it needs to take a dive, it needs to take a dip, maybe a small dip, maybe a big dip, but the dip has to be there. So गलत बोलने से ना हिचकें, गलत बोलना ही सही बोलने की शुरुआत है फ्रेंड्स। This is very very clear, keep that in your mind. जितने वक्ता हुए सभी लोग पहले गलत बोलते थे,
सभी काम शुरू में हर आदमी गलत करता है, ऐसा नहीं कोई सा भी काम पहले दिन से सही हो जाता है। कार ड्राइविंग भी पहले गलत होती है, तब जाके फिर परफेक्ट ड्राइवर बनते हैं, एंड देन यू बिकम शूमेकर एंड यू बिकम गुड कार रेसर। बट दे ऑल्सो मस्ट हैव ड्रिवन बैड इन डे वन, एक्सेलरेटर, क्लच एंड स्टीयरिंग एंड गियर एंड ऑल दैट मस्ट हैव गॉन रॉन्ग। यस और नो? आपने भी स्कूटर चलाया है, आप भी कार चलाते हैं, आप भी साइकिल चलाते हैं, must have done initially a lot of mistakes, must have fallen off the scooter, must have hit the car somewhere, but then you became better and better day by day. It came through practice, it came through that confidence. आप में इंटरेस्ट था, वो ज़ील था, वो ज़ेस्ट था, वो एंथुसियाज्म था कि नहीं मुझे गाड़ी चलाना सीखना है क्योंकि आवश्यक है। तो आपको इस बात पे विश्वास करना है कि आपको महसूस करना है कि अंग्रेजी मेरे लिए आवश्यक है, उसी तरह जैसे गाड़ी चलाना मेरे लिए आवश्यक है, उसी तरह जैसे स्कूटर चलाना मेरे लिए आवश्यक है। तो सिमिलरली मेरे लिए अंग्रेजी सीखना भी आवश्यक है। लर्निंग इज ए नेसेसिटी, वी टेक इट दैट वे, दैट इज वेयर द बेंचमार्क स्टार्ट, दैट वेयर योर प्रोग्रेस स्टार्ट। कि नो, इसको मैं सीखूंगा क्योंकि ये जरूरी है, जैसे कार मेरे लिए जरूरी थी, जैसे स्कूटर जरूरी था। एम आई राइट? आई थिंक दैट वेरी क्लियर। ओके, व्हाट टू स्पीक, व्हाई टू स्पीक, आई टोल्ड यू। नो, व्हाट टू स्पीक, आपको वही बोलना है जो आपके आस पास के, आपके दायरे में है। एक होता है अंग्रेजी में एक शब्द है बम्बास्टिक लैंग्वेज, और भारी भरकम शब्दावली। नो, यदि आप लोगों ने 8वीं 10वीं पास कर लिया है तो आपने 8वीं 10वीं की अंग्रेजी भी पास की है, उसमें 50% लाया होगा। और यदि इतने नंबरों से आपने अंग्रेजी पास किया है तो आपके पास आपकी भाषावली, आपकी शब्दावली पर्याप्त है। यू हैव इनफ वर्ड्स इन योर किटी, आपके पास पर्याप्त शब्द हैं जिससे आप अंग्रेजी बोल सकें। आपको नहीं मालूम कि आपको कितने शब्द मालूम है। यू डोंट रियली रियलाइज दैट यू नो लॉट ऑफ वर्ड्स, दैट यू ऑलरेडी नो सो मेनी वर्ड्स। आई गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. I give you a small example. You know, to get, you know the meaning of the word to get. इसका मतलब है पाना, प्राप्त करना, हासिल करना, पाना, प्राप्त करना, हासिल करना. You know the meaning of the word in, out, over, at, on, and so on and so forth. ये शब्द क्या है, इसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इन सब का अर्थ पता है। इन का अर्थ मालूम है, आउट का अर्थ मालूम है, ओवर का, एट का, ऑन का. If you use it, get with in. Get in means what? You know it very well because you have been hearing it every day. Your boss tells you, yes, come in, get in, अंदर आ जाएं. तो get means पाना, in माने अंदर, लेकिन get in मतलब अंदर आना. Similarly, get out means बाहर जाना है. हमने तो बहुत लोगों ने सुना होगा तो, और शायद बहुत लोग यूज भी करते होंगे हम में से. It is so common. Get out, get over. Get over your sick feelings. जो आपको जो बुरी अनुभूति हो रही है उससे बाहर निकलो. Get over it. Get over the sadness. किसी के घर में कुछ दुर्घटना हुई है, किसी की मृत्यु हुई, कुछ हुई है, तो उसके परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए, कंसोल करने के लिए हम बोलते हैं प्लीज गेट ओवर दिस, नाउ इनफ, इससे बाहर निकलो, अब बाहर आओ. तो गेट ओवर हैज अ न्यू मीनिंग. सिमिलरली गेट एट, सिमिलरली लास्ट इज गेट ऑन. गेट ऑन विथ लाइफ. जिंदगी चलती रहेगी, कोरोना आता रहेगा, बट वी विल गेट ऑन विथ लाइफ. सो हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ड यू हैव ऑलरेडी नोन. बातचीत में आपको बात करते करते 6 शब्द पता लगेगा. इस प्रकार अब हम लोग, मेरे अंग्रेजी पढ़ाने की शैली थोड़ी अलग रहेगी. आई विल नॉट बी गोइंग फॉर ग्रामर. मैं आपको ग्रामर बिल्कुल उससे वाकिफ नहीं कराऊंगा. मेरा
मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको मालूम हो कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि जब मैं 3 साल का था मैं सही हिंदी बोलता था और मुझे उस समय भी नहीं मालूम था हिंदी में कि भूतकाल क्या है, भविष्यकाल क्या है, लेकिन मैं सही बोलता था. So we must believe. So my methodology will be different. So see you. Good luck. Hope you have enjoyed. Like my video. If you liked it, do like and subscribe it. We'll meet for the next. Thank you. Good luck.